Okay, this is an introductory class. So today I will be touching upon 6 topics which are very small. Just an introduction to animal welfare, why you should study. What are the rational or reasons or purpose to study animal welfare? Concept of animal welfare, different perspectives of animal welfare, scientific understanding of animal welfare standards. Okay, so these are the 6 topics I will be touching upon today. I'll go little slowly because these slides are very, very important. If it gives clear concept in the beginning itself, I think it's more easy for me also to discuss in the future. First, let us see why this animal welfare is gaining a lot of importance. Is it really new, or is it really something fancy, or really something it's a current burning topic? Because someone told that I want to value add to my knowledge. Someone told that I can contribute to my department. Someone want to add to his knowledge because he belong to medicine. So it's all, yes, it is required. But before going in detail, you need to know why this animal welfare course itself has been introduced in India. Is it that it's a totally new? Is it that really it's an important issue or burning issue, or really it's required as of current situation? So for which you need to know some of the facts and figures. Okay. See what is happening when you say conventional farming or traditional farming, where we try to rear the animal with a very conventional way, or in such a way that they are more kept friendly, openly, and socially they are corrected and environmentally friendly. But day by day we shifted from conventional farming to commercial farming because of economic importance. These farming system where they were reared for their livelihood, they were reared for as a type of a livelihood, or you can say security. Okay, but gradually they took the commercial angle and we shifted from mixed or diversified farming to a commercial specialized farming. In few countries, particularly if you take South Asian countries like China, okay, Thailand, Malaysia, where even some of the commercial farmings are called factory farming. If you go to China, pig farming is not in single floor, they are in the multi-floor building. आपको एक बिल्डिंग होगा जिसमें 20 फ्लोर होगा, ईच फ्लोर में पिगरी फार्मिंग रेयर हो रहा है. Means the day they are born and they are slaughtered, then and there only. Means they will never ever get a chance to even for the sunlight at all. That is called factory farming. So when you shifted from conventional farming to commercial farming, in that process, your main motto was to gain income as much as possible. Or per unit gain, you wanted to increase at every step. So in this process, you have compromised or you have ignored the welfare of the animal. आपका मेन मोटो यही हो गया, इससे कैसे ज्यादा पैसा मैं कमाऊं और इसको कैसे मैं कम जगह में रखूं और ऐसे फीड खिला दो ताकि जल्दी बॉडी वेट गेन हो जाए, जल्दी प्रोडक्शन में आ जाए और जल्दी मैं इससे इनकम ले लूं. जिसकी वजह से वी हैव कॉम्प्रोमाइज सो मेनी वेलफेयर एस्पेक्ट्स ऑफ animals in every sense, which I am not going in detail, which made some of the animal lovers, anthropologists, philanthropists, okay, it gave a chance to sensitize the public. जो आप कर रहे हैं सही नहीं है, because animals also are like that. आप उसको रखो, पालो, but not at the cost of welfare of the animal. Okay. So this is one of the important points. Second fact is that
डिग्री ऑफ पेन इज एक्सेप्टेबल टू एनिमल। बहुत सारे सिचुएशन में एक सफरिंग होना इट हैज बिकम ए आम बात, मीन्स वी आर एक्सेप्टेड दैट एनिमल्स आर मेंट फॉर सफरिंग। फिर आप जस्टिफिकेशन भी देते हैं, लोग भी सफर कर रहे हैं तो एनिमल सफर करने में क्या है, जिसकी वजह से स्टिल अगेन फर्दर इंक्रीज दी सीवियरिटी ऑफ एनिमल वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आप उसको मानने लग गए कि ये सब चलता एनिमल के साथ। तीसरा ये है एनिमल वी कंसिडर एज ए प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री आइटम। ठीक है ना, उसको वस्तु जैसे ट्रीट करने लग गए, उसको एक कमोडिटी जैसे ट्रीट करने लग गए। When you try to treat these animals instead as a sentinels, when you treat it as a property, so naturally बहुत सारे चीज उनका अपनी व्यू के हिसाब से जो भी एक्सप्रेस एनिमल करते हैं उसको आप इग्नोर ऑटोमेटिकली करेंगे, बिकॉज आपके लिए वो मतलब का नहीं। सेकेंड इज नीड्स ऑफ एनिमल्स आर सेकेंडरी टू ह्यूमंस। हमारे वजह से एनिमल है, वी नेवर थॉट दैट फ्रॉम एनिमल्स वी बिकेम, ओनली थिंग इज दैट वी बिकेम मोर सिविलाइज्ड, बट नाउ वी प्रिज्यूम दैट एनिमल्स आर मेंट फॉर अस। इसीलिए हम चाहते हैं जिस तरह से हमको चाहिए, वो एक माइंड में बैठ गया, जिसकी वजह से अगेन यू स्टार्टेड इग्नोरिंग द एनिमल वेलफेयर। रॉन्ग आइडिया ऑफ एनिमल वेलफेयर। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अगर रहेगा तो नेचुरली गुड होगा, बिकॉज वी प्रिज्यूम दैट इफ मिल्क प्रोडक्शन इज वेरी गुड वी प्रिज्यूम दैट नेचुरली एनिमल इज गुड। सर्टेनली देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इज इट फैक्ट? अगर ऐसे होता जितना भी रिच पीपल है वो लोग भी बहुत खुश होना चाहिए, बट ऐसे होता नहीं है, बिकॉज दैट इज ओनली वन पर्सपेक्टिव और वन एस्पेक्ट ऑफ हैप्पीनेस। सिमिलरली एनिमल के साथ भी वही होता है, व्हेन देयर इज ए टू मच इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन बिहाइंड इट्स कैपेसिटी, okay, it compromise many things. Best examples you can take, okay, 24/7 you are keeping the animal in the tied condition, you are keeping the advanced pregnant pigs in the stalls, or you can say farrowing crate, जहां एनिमल मूव नहीं कर सकता, जिसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है नेस्टिंग बिहेवियर बनाने के लिए, वो बनाने के लिए आप मौका ही नहीं दे रहे, बिकॉज आपको डर है कि आप ज्यादा देंगे तो नेचुरली नेस्टिंग बिहेवियर होगा, जिसकी वजह से पिगलेट मॉर्टेलिटी होगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज हम लोग के पास एक रॉन्ग आइडिया है। गुड परफॉर्मेंस मीन्स एनिमल्स आर हैप्पी, दैट इज नॉट सो। अनएथिकल रिचुअल्स naturally they are acceptable because we have been evolved through some culture. Through that culture there are some accepted rituals which you have to respect it, but एक टाइम था उस समय एक्सेप्टेबल था, बट नाउ विद द टाइम एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज। पहले एनिमल के लिए इतना लोग सेंसिटाइज नहीं थे, बट आज के दिन में मोर सेंसिटाइज्ड है। कुछ लोग चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके इतना स्ट्रांग रिचुअल्स है, यू डू इट एट योर लेवल बट नॉट एट द पब्लिक प्रीमिसेस। इसलिए अगेन इट बिकेम एविडेंस ऑफ कंसर्न फॉर द एनिमल वेलफेयर। नो रैशनल यूज ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च। आप भी देखे होंगे वेदर यू आर डन इट आर नॉट। सो एनाटॉमी में हम लोग लाइव एनिमल्स को इतना इस करके फिर हम लोग डाइसेक्शन करते थे। ठीक है, सर्जरी में हम लोग मेल डॉग्स को लेके, मेल काउस को लेके हम लोग ट्रायल एंड एरर करते थे। इवन फॉर द एक्सपेरिमेंट सेक यूज टू डू द एक्सपेरिमेंट्स वेरी अनएथिकली। जितना जरूरत से ज्यादा आप एनिमल यूज करते थे, रिपीट करते थे, इग्नोर करते थे, कैजुअल लेते थे। ठीक है, सो अगेन दैट हैज लेड टू a sort of concern to some of the people who love the animal, not emotionally, as a animal, as a sentient. उस कंटेक्स्ट में उनको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। नो रैशनल यूज ऑफ एनिमल्स इन टीचिंग। ठीक है, डिग्री कॉलेज में भी यूज होता है डाइसेक्शन के लिए, फ्रॉग डाइसेक्शन होना कॉमन बात था। ठीक है, बहुत सारे चीज था। सो पीपल वर कंसिडरिंग दिस एनिमल एज ए मोर ऑफ कमोडिटी or a property rather than a living sentence. So with the advancement of time, एक what you can say एक प्रोपागेंडा चला, एक तरह से एक मोमेंटम चला, जिसकी वजह से it attracted the people who are at the higher level.
ठीक है, बिकॉज एनीथिंग यू वांट टू चेंज इन द सोसाइटी मोमेंटम इज रिक्वायर्ड, इसलिए आप जितना भी रूल बनता है वेदर इट इज फॉर द ह्यूमन बींग्स और फॉर द एनिमल्स, आप देख सकते कोई ना कोई क्रूशियल टर्निंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से लोग बहुत सेंसिटाइज हो जाते हैं, ओवर सेंसिटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूल बन जाता है। ठीक है, सेम केस विद द एनिमल वेलफेयर ऑल्सो, इट हैज गेन दैट मोमेंटम ओनली इन 2005 ऑनवर्ड्स, उससे पहले इतना ज्यादा स्ट्रांगली नहीं कंसिडर। इसका मतलब ये नहीं कि वी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द एनिमल वेलफेयर, लेट अस सी व्हाट आर द, बट दीस आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाई दिस हैज गेन सो मच इंपॉर्टेंस अमंग द पब्लिक। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग इसको टोटली कैजुअली ट्रीट किया। और एक चीज पॉइंट एक कहना चाहता हूं कि देखिए एनिमल वेलफेयर इज ओनली उन लोगों के लिए है जिसके अंदर एक नेगेटिविटी है या इग्नोरेंट है, और जो लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी एनिमल के बारे में कंसर्न है, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, वेदर रूल इज देयर, वेदर इट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट हार्डली मैटर, वेर एवर इट इज पॉसिबल टू कंट्रीब्यूट दे आर कंट्रीब्यूटिंग। बहुत लोग पहले से गौशाला बनाया, पहले से ट्रस्ट बनाया, बहुत पहले से अपना प्रॉपर्टी डोनेट किया, ऐसे नहीं कि नहीं है। सो दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, दे आर कंसर्न विद द एनिमल्स, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं बॉदर करते, उन लोगों के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, so it means that even in our own culture, if you take India as it is, animals are culturally worshipped and revered as a god by all the religions. Thus, caring for animal welfare is not a new thing; it's an inborn attitude among the majority of the Indians, and it is so in every society. It's not only in Hinduism, Buddhism, Jainism. In every religion, it is there. Okay, and also we presume that each and every god, they are the one or other incarnation of different god and goddesses. So that's why in every sense we are taking care of the animal. Does it mean that we are really concerned with the animal welfare? Yes, we are concerned with the animal welfare, but still people are there who are really ignorant. ठीक है, उसकी वजह से फिर धीरे धीरे एक रूल बनने लग जाता है। उसी कंटेस्ट में इन इंडिया ऑल्सो दैट मोमेंटम इज नॉट लाइक ओनली 2005 ऑनवर्ड्स, इससे पहले भी लोगों ने अटेम्प्ट किया इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, बट उस समय में only animal welfare compromise means it was a cruelty. Now there I am using two words. One is animal welfare, that is in the positive sense, animal cruelty in the negative sense. इतना ही डिफरेंस है। जब हम वेलफेयर बात करते हैं, you talk about anything intervention which improves the happiness of the animal. That is animal welfare. When you say animal cruelty, it means that anything we do intentionally or unintentionally harm to the animal. They are the two faces of the same kind. बट शुरुआत में हम लोग वेलफेयर पॉजिटिव सेंस में कभी बात नहीं किया, ओनली जहां मान के चल रहे थे एवरीवन इज ट्रीटिंग एनिमल वेल, बट फिर भी लोग कुछ क्रूएलिटी में इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके लिए रूल इंट्रोड्यूस होने लगे। ठीक है ना, एंड दैट फर्स्ट क्रूएलिटी रूल स्टार्टेड इन 1857. यू सी इट्स क्वाइट लॉन्ग बैक. आफ्टर दैट अगेन गवर्नर जनरल काउंसिल इन इंडिया इंट्रोड्यूस और अमेंडेड many times, 57, 60, 61, 67, 79, 89. Okay, so then and there, depending upon the need, they have made some amendments. Later PCA 1890. ठीक है, तभी इसको यूज किया। जो what we read today PCA 1960, it's only the modern version of PCA which was tried or attempted in 1890. Okay, so that time also it was talking about something unnecessarily killing of animals in inhuman manner. ठीक है, उस कंटेक्स्ट में फिर आया एसपीसी इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में अगेन द ग्रेट लेडी रुक्मिणी देवी, then nominated member Rajya Sabha, introduced PCA bill in 1953. Later it was withdrawn, but again it was passed in 1960. उसके बाद उसी के एक्ट के अंदर में फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए दिस इज ओनली डिफरेंस, पीसी एक्ट में क्या होगा, उसी का पार्ट है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ओके, बट एक्ट में ओनली इट टेल्स व्हाट टू बी डन, बट हाउ टू बी डन दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया टेल्स। सो दैट इज फॉर ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स और फार्म एनिमल्स, बट सीपीसी आता है दैट इज ओनली फॉर द रिसर्च पार्ट। ओके, सो एक्सक्लूसिवली इट डील्स विद द एनिमल्स व्हिच आर यूज्ड इन द रिसर्च। एंड गवर्नमेंट अटेम्प्ट भी किए एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, although it's not so successful, but at least government has made some effort to make a separate institute in which
they were supposed to train the veterinarian, non-veterinarians or legal people, lawyers, about the animal welfare. Okay, so this is something like history. Now, why this has come so seriously? So now these are the 4 points. Okay, na? What are those? Let us see one by one. This is one important slide. Okay, why this concern has arisen among the public? One is ethical and moral concern about the lives of the animal. लोग जैसे जैसे अपना परिस्थिति जब इम्प्रूव होता है, तो नेचुरली दे थिंक बिहाइंड देयर कंफर्ट जोन. ठीक है ना? उनको लगा कि why we are so negligent about the animals. They are also like us. They are also sentient. Why we are so much ignoring, or we are compromising the welfare of the animals? There is some people who talk in this sense. Okay. दूसरा है कुछ लोग है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके, उनको लगता है अगर एनिमल का प्रोडक्ट आप खा रहे हैं तो एनिमल कहाँ से आया, कैसे रेयर किया, किस तरह से रेयर किया, हाउ दे वर रेयर्ड, रियली दे वर हैप्पी ड्यूरिंग द रेयरिंग टाइम, बिकॉज एनिमल को प्रोडक्ट खाना मना नहीं है, बट हाउ दे वर बीन रेयर्ड. ओनली जस्ट लाइक आप कमर्शियल फार्मिंग में आप उनको कभी जिंदगी भर जस्ट आप ओनली इंटेंशन इज टू इंक्रीज द एडीजी, एवरेज डेली गेन पर डे. ठीक है ना, वही एक मोटा है. सो एनिमल्स वर नेवर हैप्पी, दे वर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन्स आर बीइंग कैरीड टू द प्रोडक्ट्स एंड दे आर अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ. इसलिए अनदर सेट ऑफ पीपल दे थॉट दैट दिस हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ. ओके, तीसरा ग्रुप है एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी कंसर्न. ठीक है, आप जितना भी आज के दिन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बात जिक्र करते हैं, पहले मिक्स फार्मिंग था, बाद में डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो गया, बाद में स्पेशलिस्ट फार्मिंग हो गया, नाउअडेज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग. वहां वही. सो व्हेन यू डू फार्मिंग विद द अवेलेबल रिसोर्स, ओके, कीपिंग द एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट मीन्स जो लोकल एनवायरमेंट है उसको व्यू में रखते हुए वहां का प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट यूज करते हुए एनिमल रेयर करते हैं, दे आर ऑलवेज गुड विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट. Thereby you are maintaining the environment as well as biodiversity, or you are indirectly maintaining the ecosystem. ठीक है ना. अगर वही स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होगा, आप एक बिल्डिंग में रखेंगे, कोई भी राशन आएगा दिल्ली से, ठीक है, आपका इम्प्लीमेंट्स आएगा दूसरे जगह से, ठीक है, एंड देयर बाय यू आर ब्रेकिंग दी इकोसिस्टम. ठीक है, वो आप नहीं चाहते. लास्ट वन इज ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत डेवलप कंट्रीज ने टैग भी डाल दिया उसके साथ. अगर एनिमल आपका फार्म में वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा तरह से रेयर किया, यू विल गेट द एक्स्ट्रा रिन्यूमरेटिव प्राइस. इसलिए KFC, डोमिनोज, ये सब में ऑलरेडी टैग के साथ आता है. जो भी उसकी प्रोडक्ट होता है, दे आर ऑलरेडी हैविंग द एनिमल वेलफेयर सर्टिफिकेट कि यहाँ हम लोग कोई भी अनवांटेड चीज इनह्यूमनली एंड नहीं करते, अनवांटेड चीज खिलाते नहीं है, ह्यूमनली हम लोग इसको स्लाटर करते, बाद में प्रोडक्ट बनता है. उसके बाद ही वो प्रोडक्ट डोमिनोज वो चेन में आएगा या KFC चेन में. सो दिस आर इंटरनेशनल लेवल. उसके साथ साथ भी उसके साथ साथ भी इंटरनेशनल लेवल में आफ्टर स्टैट्यूटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल अंडर OE स्टैंडर्ड्स एंड बायोसेफ्टी नॉर्म बिल, एनिमल वेलफेयर हैज बिकम इंपॉर्टेंट issue of green box of World Trade Organization agenda and will be more important in the future. मतलब जितना आप वेलफेयर में के हिसाब से आप पालते, वेलफेयर मीन्स देयर आर सम गाइडलाइंस, किसको आप वेलफेयर कहेंगे वो बात की बात है, बट अगर आपने वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं सो नेचुरली आपके लिए एक एडेड एडवांटेज मिलेगा इन द इंटरनेशनल ट्रेड. सो दीज आर द कंसर्न. बट ये आम पब्लिक के लिए नहीं, जितना भी हमने बताया ये सब एक साइंटिफिक लोग के लिए, जो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए. बट आम पब्लिक कब कॉशियस हो जाता है, जब मीडिया में देखते हैं कोई भी एनिमल को मारते हुए अगर वीडियो क्लिपिंग टीवी में आ गया. ठीक है, फैक्ट्री फार्मिंग में जिस तरह से पपी फार्मिंग है, मतलब उनको ब्रीड करना बेचना, ब्रीड करना बेचना. ठीक है, उसी तरह से कमर्शियल पिग फार्मिंग, उस तरह से अगर आपने 2-3 वीडियो बना के अगर मीडिया में कवरेज कर दिया, सो नेचुरली इट बिकम्स ए ग्रेट मूवमेंट अमंग द पब्लिक. फिर लोग कॉशियस, बिकॉज बहुत लोग जानते नहीं हाउ इट इज बीइंग रेयर्ड. इवन सिटी में भी आज भी इंडिया में बहुत लोग नहीं जानते हैं हाउ दे आर बीइंग रेयर्ड. दोज हु आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सिटीज, रियली दे डोंट नो.
how animals are being reared, how animals are being slaughtered. ठीक है ना? References in the parliamentary discussion and government statements. Government खुद ही चाहता है कुछ कुछ चीज जो अन्याय हो रहा है उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन जब बनता है, that it becomes an issue. Later it will take into the a type of law or legal part. उसका कोई ना कोई अमेंडमेंट करने के लिए चाहते हैं. रिक्वेस्ट फॉर साइंटिफिक एविडेंस कंसर्निंग द एनिमल वेलफेयर, मतलब एक एजेंडा उठ के, एक टॉपिक उठ के. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, साउथ में, ठीक है ना, वाटर बफेलो राइडिंग, ठीक है, कंबाला, ठीक है, लाइक देयर आर सो मेनी एनिमल स्पोर्ट्स आर देयर. तो आप वो रिचुअल से, एक पद्धति, एक रिलीजन में ऑलरेडी पहले इतना साल से आ रहा है. तो ना कोई भी एक एनजीओ आता है, दैट्स बेसिकली एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको लगता नहीं इसमें बहुत एनिमल के ऊपर इनह्यूमनली हैंडल हो रहा है, बिकॉज वो लोग बीटते हैं, मारते हैं, ठीक है, जबरदस्ती करते हैं, इसीलिए इसको बैन करना चाहिए. तुरंत गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकता, बट इट इज बिकम ए पार्लियामेंट्री डिस्कशन. नाउ गवर्नमेंट विल फंड टू सम ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन to state or to prove that really it is undergoing any painful procedure or not, or it seeks the advisory from the educated people, okay, or else it will try to collect the information, okay, from the different sources, ठीक है. So like that it indicates that government अगर पैसा इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए दे रहे हैं with respect to animal welfare, it means that something there is a serious, okay. अगर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन नया रूल बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी स्ट्रिक्ट रूल nowadays in almost all the states, because I have been involved in transporting animals at least 17-18 transportations we make for the while purchasing the animals. So many times we have been caught, so many times we have been arrested by police and also media people, because उन लोगों के लिए एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन रहता है, बट आपके पास थरो इंफॉर्मेशन होना चाहिए. पहले खुद ही सेटिस्फाई होना चाहिए किसको हम लोग वेलफेयर कहते हैं, किसको वेलफेयर कंप्रोमाइज करते हैं, किसको हम लोग गाइडलाइंस मानते हैं, किसको रियली गाइडलाइंस के अंदर नहीं, वो आपको एज ए वेटरन पता होना चाहिए. दैट विल बी डिस्कसिंग. सो दीज आर द एविडेंसेस, आर द एविडेंस ऑफ कंसर्न indicates that day by day animal welfare is becoming a current topic or subject to be known scientifically, not emotionally. आपके पास विदाउट प्रूफ के साथ कुछ भी बात करेंगे इसका कोई वैल्यू नहीं. So this is all about the type of introduction. Now, what exactly animal welfare means? Animal welfare जब हम बात करते हैं, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, it is in positive sense, welfare. What exactly welfare? The good fortune, health, happiness, prosperity, well-being. This is a typical meaning for the welfare. अगर वो definition animal के साथ होता है, then it becomes animal welfare. So animal welfare would be an animal in the state of good fortune, well-being. Similarly, आप जब पढ़ते हैं यूजी में या पीजी में, एक DSW होते हैं, डीन फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, दैट्स बियॉन्ड एकेडमिक एक्टिविटी, इजंट इट? आपका हॉस्टल में जो भी कंसर्न होगा, जो भी स्पोर्ट्स से कंसर्न होगा, जो भी बियॉन्ड योर एकेडमिक एक्टिविटी, जो कंफर्ट का रिलेटेड होगा, दैट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द डीन स्टूडेंट वेलफेयर, ठीक है ना. Similarly, here animal welfare is a subject wherein we are talking behind the production performance. हम चाहते हैं एनिमल से अच्छा प्रोडक्शन आ जाए, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनिमल वेलफेयर. इसलिए इसको कहते हैं एनिमल वेलफेयर इज ए वेरी सब्जेक्टिव. इसलिए इस पूरा कोर्स में यही एफर्ट है हम लोगों का कि तुरंत अगर कोई एनिमल वेलफेयर क्या होता है, एवरीबडी ट्राई टू से फ्रीडम फ्रॉम द एंगर, थर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम द इंजुरी, वो नहीं है. पहले आपको जानना जरूरी, इसलिए तो मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर दी मेथड टू असेस द एनिमल वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि कोई एक थंब रूल नहीं है. आपको जैसे आप बीमार पड़ते हैं, अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई डेंगू फीवर के लिए, देन यू विल गो फॉर सिंगल टेस्ट. बट आपको लग रहा है कुछ भी सस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, देन यू विल गो फॉर द फुल स्क्रीनिंग. बोथ हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, एवरीथिंग यू विल गो, सीरो बायोकेमिस्ट्री, ताकि ओवरऑल क्या इंटरनली रॉन्ग है उसको हम असेस करने की. सेम उसी तरह से एनिमल वेलफेयर में भी वही है कि जब एनिमल वेलफेयर का बात करते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव असेसमेंट ऑफ द एनिमल कंफर्ट और वेल-बीइंग. ओके, सो नाउ टाइम बीइंग, एनिमल वेलफेयर मीन्स animal in the state of good fortune or well-being.
और उसको कैसे असेस करेंगे? एनिमल वेलफेयर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड रिफ्लेक्ट्स इन इट्स बिहेवियर। प्रॉपर्टी यहाँ वो नहीं है, प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं है कि वो असेट नहीं है। प्रॉपर्टी मीन्स नेचर, जैसे हम कहते हैं ना साल्ट का प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल का प्रॉपर्टी क्या है, उस तरह से मीन्स हाउ एनिमल एग्जिबिट्स। अगर मान लीजिए हॉस्टल के अंदर जाएंगे, इफ एवरीवन इज हैप्पी विद द फूड, एवरीवन इज हैप्पी विद द क्लीननेस ऑफ द हॉस्टल, इफ एवरीवन इज हैप्पी विद द cleanliness in the room, it means that it is reflected in the behavior of the students. Otherwise, जैसे वार्डन जाएंगे तुरंत कंप्लेंट्स होगा, it means that you are not satisfied, and which are exhibited by argument. ठीक है? So now, then what is animal welfare? शुरुआत में एक जनरल डेफिनेशन हुआ करता था, उस समय यही होता था, whenever you talk about animal welfare or animal cruelty, this is what used to say. Okay, avoidance of abuse and exploitation of animal by humans by maintaining appropriate standards of accommodation, feeding and general care, the prevention and treatment of disease, and the assurance of freedom from the harassment and unnecessary discomfort and pain. एक शुरुआत का एक डेफिनेशन था, कभी कभी आज भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है, बट इट्स नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन. ओके, so it's a type of definition which talks about only related to a physical entity. Okay, so that's why this definition, if you take, highlights the fact that animals welfare for long was interpreted merely as satisfying the essential physical needs of an animal. So this has completely ignored the psychological and emotional needs, and at the same time accepting some of the degree of pain and discomfort will be inflicted on the animal. Again, I'll repeat this statement. You can see, avoidance of abuse means it is not completely telling you should stop. Avoid मतलब जहां तक कोशिश करिए अवॉइड करना है. And exploitation of animal by human beings, किस तरह से? By maintaining appropriate standards of accommodation, feeding, general care, prevention and treatment of disease, and assurance of freedom from the harassment and unnecessary discomfort and pain. So this talks about only one side of the animal welfare, ignoring the psychological and emotional needs. So that's why this definition is going to be incomplete. Okay? तो फिर क्या एक्चुअल क्या है, फिर एनिमल वेलफेयर का क्या डेफिनेशन है? तो उसको तुरंत ऐसे हम लोग डिफाइन कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल वेलफेयर. वी डोंट से द डेफिनेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर. दिस इज नॉट ए डेफिनेशन, और you can define it with a single statement or two statements. Okay, it's a concept. Concept means idea, ideology. अगर आप वेटनरी डॉक्टर है, फील्ड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हो सकता है आपके मन में एक अलग आइडिया होगा वेलफेयर क्या होता है. अगर मैं एकेडमिशियन हूँ, हमारे लिए एक हो सकता है दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, बिकॉज हमारा थिंकिंग डिफरेंट है. आप फील्ड में जाएंगे वेटनरी को, सर क्या बोलते हैं सर एनिमल वेलफेयर, वहाँ तो लोग खिला नहीं पाते, ठीक से रख नहीं पाते, कहाँ आपका एनिमल वेलफेयर? नेचुरली आएगा बिकॉज दे हैव सीन द ग्राउंड रियलिटी. They have seen the ground reality. But does it mean that you should not do it anything? You should. If you cannot do it, you do something. You do something, not if not completely. इसलिए बाद में आएंगे. अगर कुछ नहीं तो कुछ तो करो, अगर कुछ कर रहे तो और बेहतर करो, और बेहतर करे दी बेस्ट करो. यही है एनिमल वेलफेयर का ओवरऑल अप्रोच. ठीक है ना? तो ये शुरुआत है. ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए. देखिए ट्रांसपोर्टेशन, जब मैं 15 ईयर्स के पहले अगर बात करता हूँ तो बहुत लिबरल था, बट आज के दिन में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. दैट इटसेल्फ इज ए कंट्रीब्यूशन. ओके, आपका रिचुअल्स देखिए, बहुत सारे एनिमल्स स्लॉटरिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल होते थे. हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स आर स्लॉटर्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल अमंग द ह्यूज क्राउड. बट नाउअडेज एवरीवेयर इट इज स्टॉप्ड. आप यू कैन डू इट, बट इन ए नॉन ओपन और यू कैन से पब्लिक प्लेसेस. दैट्स एन इम्प्रूवमेंट. इट्स ग्रेजुएट, डे बाई डे और इम्प्रूव होता जाएगा. जैसे जैसे आपका इकोनॉमी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका अफोर्डेबिलिटी बढ़ता जाएगा, तो नेचुरली विल ट्राई टू शो सम कंसर्न अबाउट द एनिमल, एनी ऑफ. तो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल वेलफेयर को दो पर देखते हैं. ठीक है, फिजिकल फिटनेस के हिसाब से देखते हैं, मेंटल स्टेटस के हिसाब से देखते हैं, नेचुरलनेस के हिसाब से देखते हैं. फिजिकल स्टेटस मतलब ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन. ठीक है ना? अगर एनिमल फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट मतलब इफ एनिमल इज एबल टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टिंक्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म.
प्रोपेगेट करना जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है. इफ इज एनिमल एबल टू रिप्रोड्यूस and give the proper production, it means that animal comfortable, animal welfare is good. That is with respect to fitness. But लोग जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं सिर्फ वो नहीं है, वो तो फिजिकली आपको दिख रहा है, क्या पता एनिमल अंदर से बहुत कुछ इमोशनली सफर हो रहा होगा. So that is a mental feeling status. क्या अंदर what you feel inside, whether it's a positive or negative emotional status, okay, उस कंटेस्ट में भी आप एनिमल वेलफेयर को डिफाइन कर सकते हो. तीसरा है नेचुरलनेस. आप बहुत अच्छा एनिमल दिखने में बहुत सुंदर है, परफॉर्मेंस अच्छा है, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, आपको लगता है इमोशनल स्टेटस नॉर्मल है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द नेचुरल बिहेवियर, नेचुरलनेस. ठीक है. नेचुरलनेस मीन्स जो वाइल्ड कंडीशन में जो एनिमल का बिहेवियर होता है वो चीज आज भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल में, आई एम यूजिंग टू वर्ड्स. वन, जो एनिमल वाइल्ड एनिमल में बिहेवियर था आज भी डोमेस्टिकेशन होने के बाद बहुत सारे बिहेवियर ड्रॉप आउट हो गए, बट कुछ बिहेवियर ड्रॉप आउट नहीं हो पाता है. जैसे नेस्टिंग बिहेवियर इन पिग, नेस्टिंग बिहेवियर इन डॉग, ओके, नेस्टिंग बिहेवियर इन गिनी पिग, नेस्टिंग बिहेवियर इन रैबिट्स, ये सब इंस्टिंक्ट से वो आज भी हटा नहीं पा रहे. ओके, अगर वो चीज नहीं कर पा रहे हैं मीन्स दैट एनिमल इज सफ्ट. इसलिए these are the different concepts or different perspectives you can define the animal welfare. So one by one let us take. हम पहले ही कहा कि कोई भी एक पर्सपेक्टिव में आप एड्रेस करेंगे इट्स इनकम्प्लीट. जहां तक हो सके आपका डेफिनेशन शुड टेक केयर ऑफ 3 डोमाइंस, फिजिकल, मेंटल एंड नेचुरल. अगर होता है तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है, नहीं होता है तो एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए. सो नाउ 2 के साथ फिजिकल एंड मेंटल. तो एक एग्जांपल भी लिया, ठीक है, एक डॉग का एग्जांपल लिया, जस्ट आई विल टेक आउट. सो हियर 2 कॉन्सेप्ट को लेके एक एग्जांपल दिया है. मीन सपोज ट्यूमर है या इन्फेक्शन है, फिजिकली दे आर विजिबल, ठीक है, फिजिकली दे आर एबल टू सफर, बट इमोशनल आज भी हैप्पीनेस में कोई उनका ज्यादा डर नहीं है, बिकॉज अभी इतना सिवियरिटी बढ़ा नहीं है. बट बाद में क्या होगा, वो खा नहीं पाएगा, नेचुरल बिहेवियर आएगा नहीं है, एंग्जाइटी होगा, फियर होगा. बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं लोगों को पता नहीं रहता है, बट टिल देन दे आर मेंटली फिट, बट द डे दे लर्न दैट दे हैव गॉट सम कैंसरस टिश्यू, नेचुरली दैट एंग्जाइटी, फियर इट डेवलप्स. सो देन उनका टोटली जितना अभी तक उनका मेंटल स्टेटस था, वेलफेयर लेवल था, टोटली ड्रॉप्ड. ठीक है ना. सो व्हेन यू से फिजिकली, यहां बात आता है व्हेन यू से फिजिकली देन इट्स ए क्रूएलिटी, क्योंकि आपका फिजिकली जब बात करते हैं इट इज विद रेस्पेक्ट टू मोस्टली इंजुरी. ठीक है ना. तो जब इंजुरी बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजुरी यू कैन कॉज टू द एनिमल. वन इज इंटेंशनल, दैट इज कमीशन क्रूएलिटी. So that cruelty can be animal abuse or physical injury, okay, which is mostly a intentional, deliberately आप करते हैं. दूसरा एक होता है omission. Cruelty can also be an omission, that is by failing to act, such as not providing an animal with food and water. यहाँ हमारा कंसर्न. फिजिकल इंजुरी बहुत लोग जब नहीं करते, लोग सोचते हैं एवरीथिंग इज फाइन, बट आप इग्नोरेंटली क्या पता राइट टाइम में खाना देना चाहिए था, दे नहीं पा रहे, राइट टाइम में पानी पिलाना चाहिए, नहीं पिला पा रहे. सो दैट इज ऑल्सो ए क्रूएलिटी, दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्रूएलिटी. इट्स नॉट मेंटल, इट इज ए फिजिकल क्रूएलिटी. इसीलिए तो इतना इजी नहीं जितना हम लोग सोचते हैं एनिमल वेलफेयर का. तीनों को जब इन्वॉल्व करते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड नेचुरल, it is the ultimatum, because if animal is physically fit means they are able to perform well, reproduce, and mentally they are very much normal, so automatically they will express all the natural behavior. It means that animal is perfectly fine, which को कहते हैं हम animal welfare is good. ठीक है, उसका टर्म है animal welfare is good. ओके, तो इसी का एक एग्जांपल दिया. सपोज एक डॉग है, उसका ओरल ट्यूमर है, शुरुआत में उसका लीजन प्रेजेंट है, मेंटली इट इज फाइन, बट फ्यूचर के हिसाब से जब वो
दूसरा स्टेज में एंट्री हो जाता है मेंटल स्टेटस, ऑटोमेटिकली पेन की वजह से डिस्टर्बेंस करते हैं सफर से लास्ट। ओके, इसीलिए आपको शुरुआत में जो भी पॉसिबल होगा उसको आपको एड्रेस करना पड़ता है। सिमिलरली कीपिंग एडवांस प्रेग्नेंट सोस इन द फैरोइंग ट्रेड, पहले इंडिया में भी था, अभी टोटली इट्स बैन, बिकॉज वहां एनिमल नेचुरल बिहेवियर एक्सप्रेस ही नहीं करता बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। उनको चाहिए एक नेस्टिंग बिहेवियर बनाने का, इसलिए हम बेडिंग मटेरियल देते हैं। इट ट्राई टू अक्यूमुलेट ऑल द बेडिंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेन जस्ट एग्जिबिट ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। हो सकता है जितना वाइल्ड कंडीशन में एक घोंसला बनाता है उतना नहीं बना पाता, बट फिर भी इट इज एबल टू मेक सम टाइप ऑफ नेस्ट सो दैट इट विल फील दैट इंटरनल फीलिंग ऑफ मेकिंग ए नेस्ट। ठीक है, अगर नहीं देते हैं व्हाट इट डज, इधर इट विल ट्राई टू बाइट, achieve any projections, any art subject which is available in the head. In the end of the day, it will end up in injury as well as frustration. Okay. So when you say physical status, उसका एक जो definition है ना, अभी तक जनरल था, अभी individual scientist wise define किया। Fraser and Brew, well known ethologist, okay, he says that welfare defines the state of an animal as regards its attempt to cope up with its environment. ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो देन यू कैन यूज दीज डेफिनेशन। ओके, सो आई सजेस्ट दैट एन एनिमल इज इन पूर स्टेट ऑफ वेलफेयर ओनली व्हेन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स आर डिस्टर्ब टू द पॉइंट दैट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन आर इम्पेयर्ड। मैंने पहले ही कहा था ना, फिजिकल फिटनेस मीन्स दे आर एबल टू परफॉर्म, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, तभी हम कह सकते हैं एनिमल वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। यहां भी आप देख सकते हैं कितना कोप अप, अटेम्प्ट टू कोप अप विथ इट्स एनवायरमेंट। आप एग्जाम का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा आप पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम स्ट्रेस रहेगा तो जरूर आप पढ़ेंगे, बट अब ज्यादा स्ट्रेस वही हो जाएगा तो इट बिकम्स ए बर्डन, देन इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन। आप जो पढ़ना चाहते तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह से क्लास टू मच कॉम्प्लिकेटेड होगा, पहले थोड़ा सा कोप अप करेंगे समझने के लिए, आप समझ में से बाहर जाएगा तो देन यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द स्पीड। ठीक है ना, so they are nothing but a cope up. Okay. So another definition Duncan ka, neither health nor lack of stress nor fitness is necessary or sufficient to conclude that an animal has good welfare. Welfare is depends upon the what animal feels. This is another domain. पहले फिजिकल था, नो मेंटल डोमेन के हिसाब से जो भी आप कह रहे थे फिजिकली फिट है वो कंप्लीट नहीं है, वो animal what it feels internally, that is more important to state that animal welfare is good. Next, naturalness. Not only will welfare means control of pain and suffering, it will also entail the nurturing and fulfillment of animals nature, which I call as a telos. It is defined by the Rollins. Means जितना भी हम लोग शुरुआत में डिस्कस किया वही चीज डेफिनेशन है, बट गिवन बाय सम वेल नोन साइंटिस्ट। ठीक है, इसलिए तो हमने उसी को उनके टर्म डिफाइन करेंगे तो फिर किसी का रेफरेंस देना ही पड़ता, तो इसलिए हमने फिजिकल के लिए एक डेफिनेशन दिया, यू कैन सी, फिर मेंटल के लिए एक डेफिनेशन दिया और नेचुरलनेस के लिए एक डेफिनेशन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट्स। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री डेफिनेशंस। देखिए, व्हेन यू से सारे तीनों चीज परफेक्टली होना चाहिए, वो कभी हो नहीं पाता। वो इवन डेवलप्ड कंट्री में भी जाएंगे तो वो नहीं पाता, डेवलपिंग कंट्री में भी जाएंगे वो नहीं पाता, अंडर डेवलपमेंट तो पॉसिबल ही नहीं। बट आपको कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, थर्ड कौन सा होना चाहिए। समवेयर देयर विल बी कॉम्प्रोमाइज इन वन और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एनिमल वेलफेयर। ठीक है ना। सो सपोज इफ यू टेक इंडिया, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम लोग जिस तरह से कन्वेंशन रखते हैं, ओपन स्पेस पे एनिमल घूमते रहते हैं, हमारा लोकल ब्रीड्स होते हैं, दे मस्ट बी हैप्पी, वी फील इट, बट सर्टेनली दे आर ऑफ बेड ऑल द टाइम, कभी भी उनका फीड रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं रहता, दैट इज ऑल्सो सफरिंग। फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कुछ भी नहीं है, बेस्ट फीडिंग देते हैं, बेस्ट कंफर्ट देते हैं, बट फिर भी फिजिकल स्पेस जितना हम लोग दे पाते हैं उतना दे नहीं पाए, बिकॉज वहाँ लेबर का प्रॉब्लम, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, ठंडा होने के कारण कम जगह में रख के उसको एनवायरमेंटली कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज। मीन्स in any given situation one or other welfare compromise will be there, but कितना compromise है that is a big question.
ठीक है, कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, दैट इज ए बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो नो कंबाइंड डेफिनेशन के हिसाब से एक ही आदमी ने दिया है तीनों मिला के, दैट इज रीसेंट डेफिनेशन। इट सेज दैट वेलफेयर कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड स्टेट ऑफ द एनिमल्स माइंड, बॉडी एंड एक्सटेंट टू विच इट्स नेचर इज सेटिस्फाइड। ठीक है ना, दिस इज द लेटेस्ट डेट। अदरवाइज बहुत लोग कहते हैं एनिमल वेलफेयर के डेफिनेशन दे दो, तुरंत कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम द एंगर, थर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट, ऐसे तीनों उसको पढ़ लेते, बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन। शुरुआत में जब हमारे पास कुछ भी टूल नहीं था उस समय हम लोग यूज करते थे, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। दिस इज ओनली असेसमेंट और फ्रेमवर्क टू असेस द एनिमल वेलफेयर। ठीक है ना, मीन्स अगर कोई भी एक फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म 3 दे दिया, तीनों फॉर्म को कंपेयर करना है, देन वी विल यूज दिस एज ए फ्रेमवर्क टूल टू असेस द वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज। कौन सा फॉर्म में कौन सा फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसको मार्क्स देते जाते हैं, बाद में बताते हैं फॉर्म ए इज गुड, फॉर्म बी इज नॉट गुड, फॉर्म ए इज नॉट एट ऑल गुड। ऐसे हम कैटेगराइज करने के लिए इसको यूज करते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। ओके, तो नाउ टू पार्ट हमने कवर कर दिया, वन इज हिस्ट्री, सेकेंड इज डेफिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू फिजिकल, मेंटल एंड नेचुरल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पर्सपेक्टिव्स ऑफ एनिमल वेलफेयर, व्यू, मतलब अपना ओपिनियन, कैसे सोचते हैं आप इसको। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव ऑफ एनिमल वेलफेयर। इसलिए मैंने कहा कि सिंस फ्यू आर फ्रॉम द फील्ड, उनका थिंकिंग अलग होगा, बिकॉज दे सीन द वेरी ग्राउंड लेवल। एज ए एकेडमिशियन हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर ले, उससे हम लोग बात करते हैं। जो लोग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो अपनी हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको तीनों चीज को देखना पड़ता है। लेट अस सी व्हाट आर दोस वेलफेयर साइंस विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जितना भी एज ए वेटनरियन हमारे लिए वेलफेयर साइंस है, मतलब आप कोई भी सही गलत कहने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कोई भी कुछ भी कह सकता है, आप कह सकते हैं कंबाला जिसमें कंपटीशन होता है, जिसमें मारना पड़ता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कम समय में उसको भगा देते हैं, वो आपको लग रहा होगा पेन है, बट हमारे पास एक एविडेंस है। हमने ब्लड ले लिया, बिहेवियर रिकॉर्ड दे लिया, उसका मेंटल स्टेट को असेस कर दिया, उसके बाद एंड ऑफ दी स्पोर्ट्स के बाद देखा अगर कोई भी डिविएशन उनका ब्लड प्रोफाइल में नहीं है, इट मीन्स दैट व्हाट पीपल परसीव इज नॉट राइट, सो इट इज एक्सेप्टेबल। आपने प्रूफ दे दिया गवर्नमेंट को, देन गवर्नमेंट विल स्टॉप बैनिंग दैट स्पोर्ट। दिस इज कॉल्ड वेलफेयर साइंस, मीन्स measures the effect on animals different situations and environment from the animal point of view। आप एनिमल के तरफ से एज ए वेटनेरियन हम लोग कोशिश करते हैं कैसे उसको कंफर्ट में रखें। लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसे रखने से गलत होगा, हाँ गलत हो सकता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं गलत नहीं है, बट आपके पास रिकॉर्ड है ये गलत है, बिकॉज यू गॉट सम डॉक्यूमेंट। सो दैट इज व्हाट एनिमल वेलफेयर साइंस मीन्स। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन you don't talk anything right or wrong, otherwise it's more of subjective, emotional, more of philosophical। ठीक है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, बट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं एनिमल सफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं सफर हो रहा है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट से सफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनिमल वेलफेयर एथिक्स। हियर कंसर्न्स हाउ एनिमल शुड ट्रीट द एनिमल, एज ए पहले था एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू में, नो एनिमल वेलफेयर एथिक्स क्या कहते हैं, हाउ ह्यूमन शुड ट्रीट द एनिमल्स, क्योंकि वो भी, अब क्योंकि हम लोग फूड चेन में है, टॉप में है, हमारे नीचे सारे हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस, सब कुछ है। नाउ इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स, दे आर आल्सो लाइक अस। हमने इवॉल्व हुए ह्यूमन बींग्स में विथ मोर मेंटल डेवलपमेंट, बट हमारा पूरा हक बनता है उनको भी ठीक से ट्रीट करें, दैट इज वेलफेयर एथिक्स। फिर वेलफेयर लॉ, ये क्या कहते हैं, साइंस कहता है कि नहीं इसको करना नहीं चाहिए, और एथिक्स कहता है इसको करना नहीं चाहिए, फिर भी लोग बहुत कुछ है, लोग करेंगे करेंगे। उनके लिए फिर क्या होगा, दंडम दशगुणम, उनके लिए रूल चाहिए, एक रेगुलेशन चाहिए। आप नहीं कन्विंस करने से नहीं समझ पा रहे हैं, कन्विंस करने से रोक नहीं पा रहे, तो फिर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, उसमें लिखा रहता है अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसे पेनल्टी लगेगा, आप ऐसे करो तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, then law will become little cautious. When it goes beyond science and ethics, then law comes into the rest. ठीक है, these are the three perspective of animal welfare. Okay.
नाउ आउट ऑफ दीज थ्री, वेलफेयर एथिक्स बहुत ज्यादा हमारे लिए नहीं है, लॉ और साइंस हमारे लिए है। वेलफेयर लॉ जो है, जितना भी मेडिसिन में क्लासेस है, वो सारे इसी से रिलेटेड है। कैसे एनिमल को कंफर्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया इन डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स, कंपेनियन एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वो लोग डिस्कस करेंगे कौन सा क्या रूल है, ठीक है ना। बट हमारे लिए वेलफेयर साइंस का पार्ट जो है हम एलपी में कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पार्ट हम थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। वेलफेयर साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज what animal want or need, how much it causes them to suffer if these things are not available, फिर आपको प्रोड्यूस करना। एक बेस्ट एग्जांपल, नीड वर्ड हम यूज करते हैं। नीड, सपोज मैंने क्लास ले रहा हूं, आपको 1 घंटे से ले रहा हूं, हो सकता है आपको ब्रेक का मौका देंगे, आप ब्रेक लेने से अच्छा लगेगा, बट मैं ब्रेक ही नहीं दिया, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ knowing the fact of your mental status, isn't it? वैसे हम लोग बोल पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर कहीं भी लग रहा है, इधर यू कैन एग्जिट फ्रॉम द क्लास, नहीं होगा तो आप उसको म्यूट करके आराम से दूसरा गाना सुन सकते हैं। यू गॉट सो मेनी ऑप्शन, बट वो चीज एनिमल के साथ नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? एनिमल का पर्सपेक्टिव में आपको काम करना पड़ेगा कि व्हाट एनिमल वांट्स। एक एग्जांपल देता हूं। तो हम लोग कन्वेंशनल फॉर्म में मड फ्लोर होता था, बाद में हमने पत्थर का करने लगे, अभी हम लोग सीमेंट के करने लगे, क्योंकि उससे क्लीनिंग अच्छा होगा, एनिमल क्लीन रहेगा, मेंटेनेंस अच्छा होगा। इस कंटेस्ट में आपने सब कुछ कंक्रीट बना दिया, बट धीरे धीरे पता चला जिसकी वजह से रूफ का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग पेन एनिमल सफर होता है, एक दिन का नहीं। जब रूफ का प्रॉब्लम होगा, वंस इट एग्रेवेट्स, देन लाइफ लॉन्ग यू कैन ट्रीट दैट एनिमल बिकॉज दे आर सो हैवी। तो अगर ऐसे एनिमल को एक मौका देंगे, तो आपने दो ऑप्शन दे दिया, वन इज मड फ्लोर, दूसरा सैंड फ्लोर, तीसरा कंक्रीट फ्लोर। उसमें पता चला कि एनिमल जाके मैक्सिमम सैंड फ्लोर में एनिमल लेट रहे। इट मीन्स दैट एनिमल प्रिफर्स सैंड फ्लोर rather than the other two floors. This is the evidence. हो सकता है सैंड फ्लोर आपके लिए कॉस्टली होगा, बट एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू में उनका मोस्ट प्रिफर्ड है सैंड का जो बना हुआ फ्लोरिंग सिस्टम। दिस व्हाट एविडेंस इट इज। फिर आप कॉस्टली होने के कारण हम लोग नहीं दे पाते, देन नेक्स्ट ऑर्डर इज मड फ्लोर। देन आपके पास एक एविडेंस हो गया, हमने पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल कंसर्न में भी और कंफर्ट ऑफ एनिमल में इंस्टेड ऑफ सैंड वी आर प्रिफरिंग द मड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर अंडर द वेलफेयर साइड। व्हाई शुड वी कंसर्न अबाउट द एनिमल वेलफेयर? व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस? व्हाट आर द ग्लोबल वेरिएशंस इन एनिमल वेलफेयर अप्रोचेस, ठीक है ना। आप डेवलप कंट्री में जाएंगे तो उनका थिंकिंग अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज में थिंकिंग, वो सब हमको देखना पड़ता है। ग्लोबल वेरिएशन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स एंड एनिमल क्रूएल्टी? सी देयर थ्री इश्यूज हियर। एनिमल वेलफेयर हमने पहले ही बताया, विदाउट एविडेंस आप कुछ भी बात नहीं कर। एनिमल राइट्स एक ग्रुप होता है, जितना भी एनजीओ है ना, वो सब एनिमल राइट्स का एनजीओ है। जो भी करेंगे आपको वो ऑब्जेक्शन करेंगे, गलत तो सही बात की बात है, पहले वो ऑब्जेक्शन करेंगे करेंगे, फिर अब वो इट बिकम्स एन इश्यू, देन आपके पास आएगा, तो देन यू हैव टू प्रूव दैट एनिमल रियली सफर नहीं करेगा। अदरवाइज उनका ऑब्जेक्शन काम ही है जस्ट रोकना। दैट्स एनिमल राइट्स। बहुत सारे जितना पेटा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन विच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, ठीक है, दे आर ऑल एनिमल राइट्स ग्रुप। उनका कॉन्सेप्ट है कि एनिमल को यूज ही नहीं करना, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। व्हाट आर द ऑप्टिमल मिनिमम एब्सोल्यूट एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड? जैसे मैंने बताया, फील्ड में जो लोग हैं उनको हम लोग एब्सोल्यूट एनिमल वेलफेयर के स्टैंडर्ड तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वहां कर ही नहीं पाए, ऑप्टिमम भी नहीं बता पाएंगे, वो भी वहां फाइनेंशियल। देन मिनिमम कम से कम जो कर सकते हैं उसको आप स्टैंडर्ड, इसलिए आप कैटेगराइज करेंगे। जहां कुछ भी नहीं करे आप भैया मिनिमम करो, जहां मिनिमम करे ऑप्टिमम करो, जहां ऑप्टिमम करे एब्सोल्यूट करो, उसके लिए बट एविडेंस चाहिए, आपका एविडेंस प्रूफ चाहिए, ताकि उसको गाइडलाइंस बनाने के बाद लोग उसको फॉलो करें। देन हाउ कैन वी अप्लाई एनिमल बिहेवियर नॉलेज इन इम्प्रूव? बिकॉज बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो लाइकवाइज व्हाई वेलफेयर असेसमेंट ऑडिट एंड व्हाट आर द मेथड्स टू इंप्रूव द एनिमल? क्योंकि आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, बट आपको सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा ना। देन ओनली इट्स लॉजिक। अदरवाइज आपको पता है गलत हो रहा है, बट गलत के साथ सोल्यूशन नहीं देखो तो उसको कोई सेंस नहीं है ना। सो सिमिलरली यू हैव टू मेक सम लॉजिकल कंक्लूजन, okay, by identifying the welfare compromise with some guidelines. Two slides are there, kindly have little patience. I'll try to wind up another 10 minutes, okay.
इसीलिए एनिमल वेलफेयर को हम लोग जब भी साइंटिफिक एविडेंस देते हैं, देन यू हैव टू गिव एविडेंसेस बेस्ड ऑन दी थ्री पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, नेचुरलनेस, फीलिंग, सेम थिंग है, बट हम लोग इसको एक क्राइटेरिया बनाए। बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या होगा, सब कुछ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, सबको हम लोग मान के चल लेते, साथ साथ में बिहेवियर को लेके चलते। तीसरा, फीलिंग एंड इमोशन, बिकॉज देयर आर सम क्राइटेरिया। सपोज if you take the blood profile of an animal and you try to identify the serotonin content, adrenaline content, anything exciting, we talks about the emotion. Behavior का अपने recording chart बनाएंगे, उससे पता चलता है कि any abnormal behaviors are not there. बचा हो तो आपका biological function, you all know it, being evaluated. Okay, so based on that you have to create some evidences to say that ऐसे करने से ऐसे welfare improve होगा। उसी बेसिस में देन यू सेट ए स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर दिया, देन यू मेड गोइंग टू गिव सम सजेशन। वो सजेशन होगा थ्री पर्सपेक्टिव में होगा, ऑप्टिमम, मिनिमम, एब्सोल्यूट। मिनिमम में क्या होगा आप देख सकते हैं, रीड आउट जस्ट क्विकली विदाउट टेकिंग मच टाइम। क्लियरली सेज दैट minimum animal welfare standards are usually prescribed by legislation and will entail avoiding cruelty and deliberate harm to animals, and the minimum practice that must be respected to avoid persecution. रूल के हिसाब से इतना तो करना ही करना, इसकी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट होगा। एंड दीज आर दी स्टैंडर्ड देयरफॉर डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट केयर फॉर द एनिमल्स बिलो विच एनिमल हस्बेंड्री मस्ट नॉट फॉल। इससे नीचे आप जा नहीं सकते। यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम स्टैंडर्ड्स। ऑप्टिमम में क्या है, यू विल कीप लिटिल बिट बेटर। प्रोडक्शन को भी आप देखते हैं, पहले में मिनिमम में जिंदा रखने के लिए। ऑप्टिमम में क्या होगा, दीज आर द गाइडलाइंस और गाइडेंस प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ एनिमल केयर वेयर एनिमल नीड्स आर मेट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म एंड एनी इल हेल्थ इज ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। ठीक है ना। एब्सोल्यूट है ये इंटरनेशनल गाइडेंस है, आपको गरीब कंट्री, डेवलप कंट्री से मतलब नहीं है। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, अगर आपको ट्रेड करना है, ये एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स को आपको मेंटेन करना ही करना है। अब अगर आप नामदारी सुना होगा, ठीक है, उनके पास एक चेन है, जितना भी मिल्क प्रोडक्ट्स आता है उनका अगर डेयरी फार्म देखेंगे तो दे मेंटेन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बिकॉज दे हैव गॉट दैट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टैग, इसलिए वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। दैट इज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं होगा तो कम से कम दिनों में एक फॉलो करो, ठीक है, बेस्ड ऑन द एविडेंस गाइडेंस। सेकेंड इज वेलफेयर एथिक्स। हमने देखिए, अगेन आई विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। वेलफेयर साइंस, वेलफेयर एथिक्स, वेलफेयर लॉ। वेलफेयर साइंस को मैंने बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस बनाने के लिए, मिनिमम, ऑप्टिमम और एब्सोल्यूट बनने के लिए। ना दूसरा दो कंटेस्ट है, एनिमल वेलफेयर एथिक्स एंड वेलफेयर लॉ, विच ओनली वन ऑफ स्लाइड्स आर देयर। वेलफेयर एथिक्स क्या है? Ethics deals with our values of what is good or bad, right or wrong, how we ought to behave and live our lives. मैंने पहले कहा था what humans should do to the animal, that's what ethics it is. ठीक है, वो गलत, right, wrong देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, वही एथिक्स है। तो इसलिए आपका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होगा, आपका कल्चर इंपॉर्टेंट होगा, उसी से आपका एथिक्स डिराइव होता है। ठीक है ना। Darwin was the first scientist to recognize animal also have an emotion like man. In this book, he expresses of emotions in man and animals. उसके बाद ही उसका एक सेंटिनेंस का एक वैल्यू मिला। ठीक है ना। So animal sentience is a capacity to feel, pursue or experience subjectively. In the context of animal welfare, sentience implies the ability to experience pleasure and pain both. Okay ना. Animals may not understand everything as we do to human, but have the same needs for the food and water, shelter, companionship, freedom of movement, अवेलेबल। मतलब जैसे इंसान है वैसे एनिमल भी के अंदर भी सेम इमोशंस है, सेम फीलिंग। वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। ठीक है ना। इसीलिए एथिक्स के ऊपर क्या राइट है, रॉन्ग है, आपको सिंपली कंटेक्चुअल रहेगा, रिलेटिव रहेगा, बट नॉट द एब्सोल्यूट। ओके, एक एग्जांपल दिया है, एथिकल डायलेमा। जैसे एक फार्मर का एनिमल पार्चुरेशन कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको ऑक्सीटोसिन यूज करना पड़ता है, बट ऑक्सीटोसिन इज बैंड। बट नाउ यू आर इन डायलेमा वेदर टू यूज इट और नॉट, क्योंकि ऑफिशियली इट इज बैंड, बट स्टिल यू हैव ए लिबर्टी टू यूज अनऑफिशियली
विच आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, और ह्यूमन प्रिपरेशन को यूज करके आप सम उस पेन से आप रिलीव कर सकते हैं। बट फिर भी कंफ्यूज है, देन यू हैव टू अप्रोचेस एथिकली। जब ऐसे डिसीजन आता है, डायलेमा आता है, उसका एक अप्रोच है यूटिलिटरिज्म थियरी। उस समय क्या होगा, आप यूटिलिटी ज्यादा प्रिफर करेंगे rather than anything else। मीन्स एनिमल से आपने फायदा लिया, इसलिए मेरा एक मोरल ड्यूटी बनता है उसको सफर ना हो, इसी कॉल्ड यूटिलिटरिज्म थियरी। दूसरा है डियोंटोलॉजी थियरी। हमने वेटेरियन, हमारा ड्यूटी फर्ज बनता है, ठीक है, सही है गलत है हमारे लिए इमेटेरियल ना हो, हमको एज ए वेटेरियन करना चाहिए, करते हैं, ड्यूटी बेस्ड एथिकल डिसीजन, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपका एनिमल वेलफेयर का सिचुएशन डायलेमा जब आता है, तो आपको ये दोनों क्राइटेरिया को एज ए वेटेरियन आप यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज वेलफेयर लॉ। दोनों चीज से अगर बात नहीं बनता है, देन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे कम फॉर द रेस्क्यू, which medicine people are going to deal it. That's why I'm not going here. Okay. So last one slide. जब भी एनिमल वेलफेयर का बात आता है एनिमल राइट्स का, दे आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। जस्ट आई विल रीड आउट व्हाट एनिमल राइट्स सेज। The idea that is not morally acceptable to use animal for human purpose at all, no matter what type of treatment you। आप कितना से भी बढ़िया रखो, बट आप एनिमल को अपनी सेल्फिशनेस के लिए आप रख नहीं सकते। बट एनिमल वेलफेयर कहता है इट इज आइडियली morally acceptable to use animals for the human purpose as long as you treat the animal humanly without causing any suffering। यही दो पर्सपेक्टिव। एनिमल राइट्स कहता है आपको यूज करना ही नहीं, एनिमल वेलफेयर कहता है कि आप यूज करो बट कोशिश करना उसका ह्यूमनली ट्रीट करें। उसी का दूसरा पॉइंट है एनिमल राइट्स पोजीशन, एनिमल वेलफेयर पोजीशन। क्योंकि ये सब जब आता है, जब मीडिया में कोई भी हल्ला मच जाता है एनिमल से रिलेटेड, तब ये सब इश्यूज बहुत सेंसिटिव हो जाता है। सो एनिमल राइट से दैट मोरली यूजिंग एनिमल इज मोरली रॉन्ग, बट हियर से दैट मोरली राइट। बेनिफिट, you should not use the animal to benefit ourselves, but here we can use it। Interest, you should not invariably overrule the interest of animals with the human interest। क्योंकि बहुत बार हम लोग यूज ऑफ एनिमल ह्यूमन बींग्स के लिए अगर ज्यादा होगा तो हमको बहुत सारी चीज कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ठीक है ना। बट एनिमल राइट्स कहते हैं कि नो वे। ओके। पेन, वी शुड नॉट इन्फ्लिक्ट पेन और डेथ ऑन एनिमल्स, बट यहाँ क्या है, एनिमल सफर हो रहा है, आप यूथनेज भी कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रीटमेंट, यू शुड always treat the animals humanly and eliminate the human made cause of animal suffering। वेलफेयर में क्या है, you should treat the animals as humanly as convenient to us। मीन्स यहाँ पेन करना ही नहीं, बट एनिमल वेलफेयर कहता है अगर करने की परिस्थिति आएगा तो उसको ठीक से ट्रीट भी कर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लास्ट स्लाइड विच आई वांटेड टू डिस्कस फॉर टुडे।